دو لوگ ایک ہی شہر میں پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی ہسپتال، ایک ہی ہوا، ایک ہی معیشت، وہ ایک ہی گلیوں میں بڑے ہوتے ہیں، تقریباً ایک جیسے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، دونوں بڑے خواب دیکھتے ہیں۔ ایک دن دونوں ایک ہی جملہ کہتے ہیں، میں کامیاب بننا چاہتا ہوں۔ 20 سال بعد ایک کے پاس اپنی پراپرٹی ہے، اس کے پاس سرمایہ کاری ہے، پیسہ اس کے لیے کام کرتا ہے، دوسرا اوور ٹائم کر رہا ہے، تنخواہ سے تنخواہ تک زندگی گزار رہا ہے، اور ہر مہینہ ایسے لگتا ہے جیسے سب کچھ دوبارہ صفر سے شروع ہو رہا ہو۔ تو آخر ہوا کیا ایک نے صرف زیادہ محنت کی؟ کیا ایک بس زیادہ ذہین تھا؟ اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے؟ اگر تم کافی محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سننے میں اچھا لگتا ہے، حوصلہ افزا بھی ہے، لیکن حقیقت ہمیشہ موٹیویشنل جملوں کے مطابق نہیں چلتی۔ یہ ہے وہ کڑوی سچائی۔ محنت اہم ہے، لیکن صرف محنت یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ کون امیر بنے گا۔ کچھ نظر نہ آنے والی طاقتیں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، ایسے اصول جو زیادہ تر لوگوں کو کبھی نظر نہیں آتے، ایسے پیٹرنز جو نسل در نسل خاموشی سے دہرائے جاتے ہیں، اور جب آپ انہیں دیکھ لیتے ہیں تو پھر انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو اگر صرف محنت کافی نہیں، پھر اصل راز کیا ہے؟ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ایک غلط فہمی کو ختم کرنا ہوگا۔ غربت صرف پیسے کی کمی کا نام نہیں ہے، یہ ماحول کے بارے میں ہے، یہ عادتوں کے بارے میں ہے، یہ مشاہدے اور مواقع کے بارے میں ہے، یہ اس بات کے بارے میں ہے کہ آپ بچپن میں ہر روز کیا دیکھتے ہیں۔ زندگی کو مونوپولی کے کھیل کی طرح تصور کریں، لیکن یہاں ایک موڑ ہے۔ ہر کوئی ایک جیسی رقم کے ساتھ آغاز نہیں کرتا، ہر کوئی خالی پراپرٹی سلاٹس کے ساتھ کھیل شروع نہیں کرتا۔ کچھ کھلاڑی کھیل کا آغاز پہلے سے ہوٹلز کے مالک بن کر کرتے ہیں، اور کچھ پہلے ہی قرض میں ڈوبے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ اب حقیقی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ ایک امیر خاندان میں پیدا ہونے والا بچہ صرف پیسہ ہی وراثت میں نہیں لیتا، وہ استحکام وراثت میں لیتا ہے، وہ تعلقات وراثت میں لیتا ہے، وہ رات کے کھانے کی میز پر ہونے والی مالی گفتگو وراثت میں لیتا ہے، وہ بڑے ہوتے ہوئے سرمایہ کاری، ایکوئٹی اور عام منافع جیسے الفاظ سنتا ہے۔ ان کے لیے پیسہ کوئی پراسرار چیز نہیں ہوتا، وہ ایک آلہ ہوتا ہے۔ اب ایک ایسے بچے کا تصور کریں جو مالی دباؤ میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ سرمایہ کاری کے بارے میں سن کر بڑا نہیں ہوتا، وہ بلوں کے بارے میں سن کر بڑا ہوتا ہے۔ بجلی کے بل، کرائے کی آخری تاریخ، قرض کی ادائیگیاں، پیسے کے بارے میں جھگڑے۔ پیسہ آلہ محسوس نہیں ہوتا، وہ خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ فرق اہم ہے، کیونکہ جو چیز اب بار بار دیکھتے ہیں وہ معمول بن جاتی ہے۔ اگر آپ پیسے کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر بڑے ہوتے ہیں تو آپ یقین کرتے ہیں کہ پیسہ بڑھتا ہے، اور اگر آپ پیسے کو غائب ہوتے دیکھ کر بڑے ہوتے ہیں تو آپ یقین کرتے ہیں کہ پیسہ ختم ہو جاتا ہے، اور آپ کا دماغ اسی کے مطابق خود کو ڈھال لیتا ہے۔ ایک شخص طویل مدتی سوچنا سیکھتا ہے، دوسرا قلیل مدتی سوچنا سیکھتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ ایسا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں ایسا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا خاندان کرایہ ادا کرنے میں مشکل کا شکار ہو تو آپ 20 سال کی سرمایہ کاری کے بارے میں نہیں سوچ سکتے۔ آپ اس مہینے زندہ رہنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ بقا کی سوچ طاقتور ہوتی ہے، یہ آپ کو زندہ رکھتی ہے، لیکن یہ شاذ و نادر ہی دولت بناتی ہے۔ دوسری طرف جو شخص فوری بقا کے دباؤ میں نہیں ہوتا، وہ اپنی خواہشات کو مؤخر کر سکتا ہے، وہ خطرہ مول لے سکتا ہے، وہ سرمایہ کاری کر سکتا ہے، وہ ناکام ہو کر دوبارہ سنبھل سکتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں چیزیں بڑھنا شروع ہوتی ہیں۔ امیر لوگ اثاثے آگے منتقل کرتے ہیں، گھر، غریب اکثر ذمہ داریاں منتقل کرتے ہیں، قرض، طبی بل، مالی دباؤ، چاہے وہ محبت اور اقدار ہی کیوں نہ دیں، جو یقیناً اہم ہیں، لیکن وہ مالی طاقت منتقل نہیں کر پاتے۔ اب اس میں وقت شامل کریں، 10 سال، 20 سال، 30 سال،
छोटे फायदे बढ़ते हैं, छोटे नुकसानात भी बढ़ते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फर्क बढ़ता जाता है। ये एक रात में नहीं होता, ये ड्रामाई अंदाज में नहीं होता, लेकिन मुसलसल होता रहता है। और यही वो हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये आम तौर पर कोई एक बड़ा वाकया नहीं होता, ये छोटे फर्क होते हैं जो दहाइयों तक दोहराते रहते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि माहौल सिर्फ एक हिस्सा है। असल मोड़ तब आता है जब हम देखते हैं कि माली निजाम खुद कैसे काम करता है, और यही वो जगह है जहां बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अब आइए निजाम की खुद बात करते हैं, क्योंकि यहां से बात जज्बाती नहीं रहती बल्कि रियाजी बन जाती है। जिंदगी में आप सिर्फ दो किस्म की चीजें खरीद सकते हैं, असासे और वाजिबात। फाल आमदनी वो है जिसके लिए आप काम करते हैं, आप अपना वक्त उसके बदले देते हैं। काम बंद तो आमदनी बंद। सरमायाकारी की आमदनी वो है जो आपका पैसा कमाता है, आप वक्त नहीं देते, आपका सरमाया काम करता है। लेकिन यहां एक अहम नुक्ता है, ज्यादातर गरीब लोगों के पास सिर्फ फाल आमदनी होती है, जबकि अमीर लोग सरमायाकारी की आमदनी बनाते हैं और यही आमदनी बढ़ती रहती है। कंपाउंडिंग यानी पैसा पैसा बनाता है। जैसे बर्फ का गोला ढलान से लुढ़कता है, शुरू में वो बहुत छोटा होता है, आहिस्ता, तकरीबन बोरिंग, लेकिन जैसे जैसे वो लुढ़कता है वो बड़ा होता जाता है और तेज भी। अगर इसमें 20 या 30 साल शामिल कर दें, फर्क बहुत बड़ा हो जाता है। एक असासा आपकी जेब में पैसा डालता है, एक वाजिब अलअदा चीज आपकी जेब से पैसा निकालती है। बात इतनी ही सादा है। अगर कोई चीज हर महीने आपको अदायगी करे तो वो असासा है, अगर हर महीने बिल भेजे तो वो वाजिब अलअदा है। असल फर्क यहां आता है, अमीर लोग पहले असासे खरीदना सीखते हैं, जबकि गरीब और मुतवस्सित तबका अक्सर पहले वाजिबात खरीदता है। इसलिए नहीं कि वो नासमझ है, बल्कि इसलिए कि मुआशरा उन्हें यही सिखाता है। आपको पहली नौकरी मिलती है, पहला हदफ क्या होता है? नया फोन, नई गाड़ी, बेहतर तर्जन जिंदगी, खुद को खुश करें। आहिस्ता आहिस्ता तनख्वाह बढ़ती है, लेकिन खर्च भी बढ़ता है। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। आप ज्यादा कमाते हैं और ज्यादा खर्च करते हैं। आपको लगता है आप अमीर हो रहे हैं, मगर आपकी असल दौलत नहीं बढ़ती। अब देखें अमीर लोग कैसे सोचते हैं। वो ये नहीं पूछते कि क्या खरीदूं, वो पूछते हैं कि क्या खरीदूं जो मुझे अदायगी करे। ये सवाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर, फौरन लग्जरी गाड़ी खरीदने के बजाय वो कारोबार में सरमाया लगाते हैं, जायदाद में, किसी ऐसी चीज में जो कैश फ्लो पैदा करे। फिर वो आमदनी गाड़ी की अदायगी करती है। गाड़ी वही होती है, फर्क सिर्फ तरतीब का होता है, और यही तरतीब सब कुछ बदल देती है। आमदनी की दो बड़ी अकसाम होती है, फ़आल आमदनी और गैर फ़आल असरमायाकारी की आमदनी। अगर आप कर्ज पर सूद अदा कर रहे हों तो ये उल्टी कंपाउंडिंग है। अब बर्फ का गोला आपके खिलाफ लुढ़क रहा है। सूद सरमायाकार के हक में काम करता है और कर्ज लेने वाले के खिलाफ। अमीर लोग भी कर्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो इसे असासे खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साख्ती शक्ल इख्तियार कर लेता है। जब कोई शख्स सिर्फ तनख्वाह पर इन्हिसार करता है तो उसकी माली जिंदगी कमजोर हो जाती है। अगर उसकी नौकरी चली जाए तो आमदनी रुक जाती है, लेकिन बिल नहीं रुकते। किराया जारी रहता है, राशन जारी रहता है, कर्ज की अदायगियां जारी रहती हैं। ये ऐसे है जैसे ट्रेडमिल पर दौड़ना। जैसे ही आप रफ्तार कम करें, आप गिर जाते हैं। अब इसका मवाजना इस शख्स से करें जो असासे रखता है। अगर उसकी एक आमदनी खत्म हो जाए तो दूसरी बाकी रह सकती है। किराए की आमदनी, डिविडेंड, कारोबार का कैश फ्लो।
वो एक टांग पर नहीं खड़ा, वो कई सतूनों पर खड़ा है। ये फर्क इस्तेहकाम पैदा करता है और इस्तेहकाम इख्तियारात पैदा करता है। अब टैक्स की बात करते हैं। बहुत से निज़ामों में तनख्वाह पर फौरन टैक्स लग जाता है। आप कमाते हैं, टैक्स काट लिया जाता है, फिर अब बाकी रकम खर्च करते हैं। लेकिन सरमायाकारी की आमदनी अक्सर पहले बढ़ती है, वो कंपाउंड होती है और टैक्स बाद में लगता है, बाज़ औक़ात मुख्तलिफ शरह पर। यह वक्त का फ़र्क अहम है, क्योंकि पैसे को कम होने से पहले बढ़ने का मौका मिला और अचानक फ़र्क छोटा नहीं रहता, वो बहुत बड़ा हो जाता है। अब एक और उनसर शामिल करें, खतरा मोल लेने की सलाहियत। अगर आप तनख्वाह से तनख्वाह तक जिंदगी गुजार रहे हैं तो आप बड़े खतरात बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप आसानी से नौकरी छोड़कर कारोबार शुरू नहीं कर सकते। आप बगैर आमदनी के 6 माह नहीं गुजार सकते। इसलिए आप महफूज रहते हैं और महफूज रहना समझदारी लगता है। लेकिन हिफाजत शाज़ व नादिर ही गैर मामूली तरक्की पैदा करती है। दूसरी तरफ जिसके पास बचत असासे खानदानी सहारा हो, वो हिसाब शदा खतरात ले सकता है। वो नाकाम हो सकता है, दोबारा कोशिश कर सकता है। एक शख्स के लिए नाकामी तबाही है, दूसरे के लिए सबक, और यही रवैया बदल देता है। अब एक गैर आरामदेह हकीकत, दबाव फैसला साजी को मुतासिर करता है। जब कोई शख्स मुसलसल माली दबाव में हो तो इसका दिमाग कलील मुद्दती बक़े पर तवज्जो देता है। माहिरीन नफ्सियात इसे कमी की ज़हनियत कहते हैं। जब आप कमी में होते हैं तो आपकी ज़हनी गुंजाइश सुकड़ जाती है। आप आज पर तवज्जो देते हैं, 10 साल बाद पर नहीं। इसलिए ज़हीन और मेहनती लोग भी कलील मुद्दती फैसले करते हैं, इसलिए नहीं कि वो कम अक्ल है, बल्कि इसलिए कि दबाव नज़र को महदूद कर देता है और निज़ाम खामोशी से इसे बढ़ा देता है। ज़्यादा शरह सूद वाले कर्ज ज़्यादातर उन लोगों को दिए जाते हैं जो पहले ही जिदोजहद कर रहे हों। लेट फीस उनको सज़ा देती है जो अदायगी में देर करें। जुर्माने जमा होते जाते हैं, मौक़े सुकड़ते जाते हैं। दूसरी तरफ जिनके पास मजबूत क्रेडिट असासे और सरमाया हो, उन्हें बेहतर शरह सूद मिलती है, बेहतर सौदे मिलते हैं, बेहतर रसाई मिलती है। ये ऐसे है जैसे 2 लोग एक ही पहाड़ चढ़ रहे हों। एक के कंधे पर ईंटों से भरा बैग है, दूसरे के पास नक्शा और इजाफी सामान है। दोनों चढ़ रहे हैं, लेकिन एक वाज़े तौर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वक्त के साथ नताइज भी कंपाउंड होते हैं।